Is there any glitch? Audible only mine? अब बताइए, अब नहीं आ रही को? Yes, sir, it's fine. आइए सर, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे। Hello, आइए sir. सर, हेलो, सही है Hello, सर। sir. Hello, sir. हाँ हेलो, अब आइए आवाज। Yes, sir. Now, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। गूगल मीट बेकार हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था ये। हेलो जी सर। जी सर। विंडो से ही करते हैं, देख के फिर। दो विंडो एक साथ नहीं हो पाएंगे, उसमें एक ही हो पाएगी। अभी विजिबल हो रहा है कुछ? Yes, sir, it is presenting. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now it's clear. Yes, sir. There is a question. Yes, sir. Question. ठीक। The last time we have discussed about the VCRS analysis, and I have explained what is the ton of refrigeration and what is piston displacement, volumetric efficiency, and power consumption is calculated generally in how horsepower. So to convert the watt into horsepower, we have to divide by 746 watt, right? And compressor discharge temperature, the main important temperature which we should know is the compressor discharge temperature. There are different methods for calculating the compressor discharge temperature. I will explore this thing using the pH chart, using isentropic process, the entropy is constant, and using superheat table of reference. There are three methods. We can use any one of these three methods. I will explain. Second law of efficiency. Uh, you might have heard about the efficiency. That is the efficiency generally is defined in terms of the engine. But yes, second law of efficiency is basically the efficiency which is actual efficiency which we have got, right? The first law of efficiency is based on the first law of thermodynamics, that is the any output upon input, output work upon input energy consumed. But the second law of efficiency is defining that what is the losses. Losses, it is involving the losses also. The total available energy, the minimum available energy required for the cycle divided by the actual available energy consumed in the cycle. This is for the energy consumed process. So second law of efficiency of the refrigerator will be the minimum energy available for the cycle is Carnot work. Carnot work. In the Carnot, we will consume the minimum work, and this is the actual work. So when we do it like a Q naught, we can convert it into the COP. So we write is that Q naught by W. This is the refrigerating effect, and this
So this will be COP of actual cycle divided by the COP of Carnot cycle. This is the second law efficiency. Somewhere in the problems you might calculate to second law efficiency. So basically second law efficiency is involving the losses within the system itself, losses within the compression process. That's why. So this is the COP of the actual cycle divided by COP of the Carnot cycle, or in terms of work, it is the work, minimum work consumed divided by the actual work consumed, right? So this is the second law efficiency. Clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इंजन के टर्म्स में अगर इस एफिशिएंसी को हम लिखेंगे इंजन के टर्म्स में, अगर मैं आपको ऐसे ही बस पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, सेकंड एफिशिएंसी इंजन के टर्म्स में क्या होगा सर? कार्नोट वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर सीओपी नहीं, एफिशिएंसी वर्क, COP की एक्चुअल जगह पे वर्क, efficiency हो जाएगा सर। ये हो अपॉन जाएगा सर। एक्चुअल वर्क, क्योंकि वर्क सर, हमारा अपॉन- आउटपुट है ना वहां पर, तो एक्चुअल वर्क डिवाइड बाय द सर मैक्सिमम मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, क्योंकि वहां पर आउटपुट होता है ना, वहां पर टरबाइन आउटपुट। तो अगर आप इसे इंजन के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहें, यानी एक्चुअल अवेलेबल वर्क डिवाइड बाय द मैक्सिमम अवेलेबल वर्क, यानी मैक्सिमम जितना अवेलेबल वर्क आपको टरबाइन में था वो टोटल एक्चुअली मिल नहीं पाता है ना। देखो, एक तो एफिशिएंसी वो है कि आपने यानी हीट एनर्जी दिया बॉयलर में और आपको आउटपुट मिला वर्क एनर्जी, वर्क डिवाइड बाय द हीट इनपुट, दिस इज द फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी। वो तो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी होती है ना, कि आपने जो है वर्क आउटपुट आपको टरबाइन में मिला और आपने इनपुट दिया बॉयलर वर्क, बॉयलर हीट, ये तो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी। सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होती है, जितना वर्क आपको मिलना चाहिए था उतने में कितना मिले, यानी टरबाइन के अंदर भी लॉसेस होते हैं ना, तो एक्चुअल वर्क विच यू गॉट डिवाइड बाय द मैक्सिमम वर्क विच यू कैन गेट। इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेटर ये रिवर्स हो जाएगा, कंज्यूम वर्क हो रहा है यहाँ पर, तो वर्क कंज्यूम हो रहा है, यहाँ तो वर्क हमें मिल रहा है, कंज्यूम हो रहा है, इसलिए या मिनिमम होगा, मिनिमम वर्क कंज्यूम divided by the actual work consumed. So this is the second law of efficiency in terms of refrigerator, and this is the second law of efficiency in terms of engine. Either it is external engine or it is internal combustion engine. तो ये सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी बहुत यूजफुल होती है। अवेलेबल एनर्जी आप लोग कहीं पढ़े, शायद अवेलेबिलिटी वगैरह भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, शायद आगे किसी फाइनल ईयर में या पढ़े कहीं, या हो सकता है उसमें आप पढ़े। एक कोर्स होता है एनर्जी कन्वर्जन का, एनर्जी कन्वर्जन का कोर्स पढ़ा है अभी आपने? नो सर। हाँ, एनर्जी कन्वर्जन शायद इस सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में शायद पढ़े एनर्जी कन्वर्जन, उसमें बहुत सारे सिस्टम। तो बहरहाल दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच वी कैन सॉल्व। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम हमने लिया है। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये प्रॉब्लम हो सकता है मैंने इसमें से ही लिया हो पिछली बार, तो लास्ट ईयर तो ये प्रॉब्लम नहीं करवाई ना हमने इस तरह की, या यही प्रॉब्लम कराई सेम, तो फिर डिफरेंट करा देंगे अभी। याद नहीं कराई वाली प्रॉब्लम, ये नहीं कराया, ठीक है। तो दिस इज द अमोनिया आइस प्लांट व्हिच इज ऑपरेटिंग बिटवीन कंडेंसर टेंपरेचर 35 एंड इवेपोरेटर टेंपरेचर -15। ठीक है, एज्यूमिंग सिंपल सैचुरेशन साइकिल। अगर कहा सिंपल सैचुरेशन साइकिल, इसका मतलब हमारा ये वाला साइकिल है, ये सिंपल सैचुरेशन साइकिल है, जिसमें कि 1 पॉइंट हमारा सैचुरेटेड पॉइंट होता है और 2 पॉइंट आपका सुपरहीट में जाएगा। ये यानी ये वाला ग्राफ है आपका, 1 2 और 3 आपका सैचुरेटेड लिक्विड होगा और 4 आपका यहाँ पर ये आइसेंथाल्पी प्रोसेस में 4 आपका नीचे इसमें होगा, और ये 4 to 1 ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा। 4 to 1 ये आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है। Q जनरली से Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर हीट होगी, कंडेंसर में जो हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है, इसे आप QH से कर देते हैं रिप्रेजेंट, QH। ठीक है, टोटल हीट है 2 - 1, Q2 - H2 - H3 होगी ये हीट कंडेंसर में जो रिजेक्ट हुई है। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वाला क्या होगा बेटा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, 1 2 3 and 4, these 4 are the state points. 1 is the point before compression, 2 is the point after compression which will be superheat, and 3 is the point after condensation, and 4 is the point after throttling. So 1 to 2, this is separation in evaporator. So H1 minus H4 will be the refrigerating effect, and H2 minus H1 will be the compressor work, and H2 minus H3 will be the heat rejected in the condenser, and H3 is equals to H4. This is the throttling process. Clear? यस सर। क्लियर बेटा, थोड़ा बताते हैं आप लोग। Yes, sir. चलिए, तो Yes, अभी
सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है रेफ्रिजरेशन, आपको कैपेसिटी दिया हुआ है, देखिए ये 10 टन का मतलब दिस इज द कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है ना। और आपको सबसे पहले कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग, हाँ कैपेसिटी निकालना है आपको। ये आपको 10 टन आइस पर डे दिया है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी नहीं दिया इन्होंने दूसरे फॉर्म में दे दी। कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है, ये इन्होंने ये दे दिया कि 10 टन्स ऑफ आइस पर डे फ्रॉम वाटर, यानी जो रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर रहा है आइस प्लांट में, that is producing 10 tons of ice per day from water or at 30 degree centigrade to ice at -5 degree centigrade. So by using this data, first of all you have to calculate the capacity and then you can calculate the mass flow rate. तो कैपेसिटी क्या होगी, 10 tons of ice, यानी कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो 10 tons of ice 1000, 10 into 1000 is the kg, the total ice kg per day। तो पर सेकंड आपको निकालना है, डिवाइड बाय 24 into 360, 3600। So this is the total mass। ये तो आ गया टोटल मास आपका m डॉट, ये आपका आ गया m डॉट टोटल मास। ठीक है, टोटल मास आया आपका। ठीक है बेटा, मास फ्लो तो क्लियर होगा भाई। 10 टन था तो 10 into 1000 kg में हुआ, डिवाइड पर सेकंड करना है हमें, तो डिवाइड बाय 24 into 3600, दिस इज पर, ये हुआ। अब आपका वो टेम्परेचर कहां पर है, टेम्परेचर आपका है -5 पर। तो पहले -5 से क्या होगा, या आप इधर से ले लें या उधर से ले लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। -5 से पहले 0 होगा, -5 पे बनाना है। अच्छा आपको अभी कहां पर है, वाटर कहां से, 30 पर है, 30 से -5 बनाना है। ठीक है, 30 से पहले 0 आएगा, तो 30 से पहले 0 आएगा, CP dt, CP इंटू dt, dt यानी 30 से 0, 30 से 0 वाला तो CP dt होगा। ठीक है, इस उसके बाद फिर 0 से लेटेंट हीट होगी, 0 से 0 वाला आइस, सॉरी 0 वाला वाटर 0 वाला आइस में कन्वर्ट होगा, यानी लेटेंट हीट, HFG, लेटेंट हीट। ठीक है, मास मैंने बाहर लिखा हुआ ब्रैकेट में, इसलिए मैं m इंटू एल लिख दें, m इंटू HFG लिख दें की बात है। उसके बाद फिर 0 आइस से -5 वाला आइस बनेगा, तो अब फिर ये यहाँ पर जो CP आएगा, ये तो CP वाटर का आएगा, वाटर का। और अब जो CP आएगा वो किसका आएगा, आइस का CP, CP ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय dt, 0 से -5 बनेगा। टेम्परेचर फाइनल क्या है हमारा, -5। तो यानी तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 0 -5, तो 5 हो जाएगा ये। तो दिस इज टोटल आपका, दिस इज टोटल हीट एब्जॉर्ब, दिस इज द टोटल हीट एब्जॉर्ब which is equals to efficient capacity। This is the total heat absorbed in watt, जो watt में heat absorb होगी, that is basically capacity। बेटा ये चीज समझ में आ गई जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है ऊपर। सर इसमें सर HFG सर 0 डिग्री वाटर का लेंगे ना सर। हाँ 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस पर, 0 डिग्री वाटर का आप टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल आपकी, अब आपको टेबल में अब एक वक्त में एक ही टैब यहाँ पर ओपन हो रही है, लेकिन तो मैं आपको बता दूं 335 होता है HFG का, लेटेंट हीट जो होती है 335 होती है 0 डिग्री पर। और ये 4 पॉइंट वाटर का तो आपको पता ही है 4.19 या 4.186 ये होता है, 4.2 लिख लेते हैं शॉर्ट में से कहीं कहीं, लेकिन 4.19 होता है करीब करीब CP जो होता है वाटर का। ये वाटर का CP ज्यादा वेरी नहीं करता है, बेसिकली टेम्परेचर वेरी करता है लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करता। और आइस का जो CP होता है 1.94 होता है। ठीक है, तो ये हमने CP की वैल्यू, आइस का CP लिखा 1.94 और वाटर का CP 4.19 है ना। और ये आपका 335 लेटेंट हीट हो गई, इसकी लेटेंट हीट है, HFG कर लीजिए, ये लेटेंट हीट है 335 जी सर। ये 335 सर, ये जूल पर केजी में है या जूल पर ग्राम में है? जूल पर केजी में है से साथ, ये भी जूल पर केजी नहीं, किलो जूल पर केजी में है, सॉरी जूल पर केजी नहीं, किलो जूल पर केजी। जैसे इसकी यूनिट भी 4.19 क्या होता है, CP वाटर की जो होती है 4.19 है, 4.16 क्या होती है, किलो जूल पर केजी होती है, ये किलो जूल पर केजी। ओके, ठीक है, और ऐसे ये भी 335 किलो जूल पर केजी होती है लेटेंट हीट वाटर की, और वाटर टू आइस यानी। और ये जो होती है ये भी 1994 किलो जूल पर केजी होती है। ठीक है, सो दिस इज द हीट एब्जॉर्ब। बेसिकली सब में माइनस आ रहा है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब है तो माइनस हमने वो ले लिया। हीट एब्जॉर्ब जो निगेटिव में होगी ना, पहले आपको पढ़ाया था हीट एब्जॉर्ब भी निगेटिव, तो ये सब निगेटिव आ रहा है बेसिकली देखा जाए तो। आप 0 से 30 से पहले 0 हुआ तो 0 -30 होता है, ये भी माइनस में होता है हीट एब्जॉर्ब है, ये भी -5 -0 होता है,
लेकिन चेंज की, क्योंकि चेंज है हमारा और ये लेटेंट हीट ऑलरेडी कहीं हीट एब्जॉर्ब ऑलरेडी नेगेटिव में होती है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं लिया गया है इसलिए। वरना फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना टेम्परेचर, 0 - 30 होता है, कहना चाहिए 0 - 30, और ये भी माइनस में हीट एब्जॉर्ब है, और ये भी -5 -0, तो ये सब निगेटिव में हो जाएगा और हीट एब्जॉर्ब निगेटिव में ही आती है, ठीक है ना, इसलिए वो निगेटिव हमने लिया नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हमारा जो आया 54.43 आ गया हमारा। क्लियर हो गया ये चीज? कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है मास फ्लो रेट। अब कैपेसिटी हमारी आ गई किलोवाट में, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा, तो हम हमारा यानी ये कैपेसिटी आ गई है, और कैपेसिटी टन में होती है या फिर जो है किलोवाट में होती है, तो दैट इज, ये क्या होती है, एम डॉट इंटू, इस टेबल के टर्म्स में बात करें हम, एम डॉट इंटू यहाँ पर H1 - H4, एम डॉट इंटू H1 - H4। तो अब हमें H1 H4 चाहिए एम डॉट कैलकुलेट करने के लिए। एम डॉट दूसरा था, ये तो ये वाला एम डॉट मैंने आपको ये एम डॉट डैश लिख दीजिए, अच्छा कंफ्यूजन ना हो, ये वाला एम डॉट था, ये वाला एम डॉट। लेकिन अब हमें अपने प्लांट का, यानी ये तो रेफ्रिजरेटिंग, ये तो वाटर का एम डॉट था बेसिकली, कहना चाहिए वाटर बना रहे थे ना, आइस बना रहे थे, वाटर का एम डॉट था। ये एम डॉट आपका रेफ्रिजरेशन का है, यानी रेफ्रिजरेंट का एम डॉट है, ये एम डॉट आर लिख लीजिए चाहे तो आप। तो दिस इज H1 - H4। ये एम डॉट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए H1 और H4, ठीक है, H1 - H4 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, तो उससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा मास फ्लो रेट। तो इसके लिए H1 H4 चाहिए, तो H1 H4 आप देखते हैं, कैसे देखेंगे, H1 क्या होगा, अब मुझे बताइए, टेम्परेचर -15 है, 35 है, H1 क्या होगा, H1 विल बी द, सर ये H1 H4 सर निकालने की जरूरत क्या है सर? वो जो वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा हीट सर, वही ना H1 H4 का डिफरेंस होगा? नहीं तो एम डॉट नहीं मालूम है ना, एम डॉट कैलकुलेट करना है ना बेटा, मैं मास फ्लो रेट पूछा है ना उसने, मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे आप बताइए, मास फ्लो रेट निकालना है ना हमें इसकी जरूरत इसलिए है कि मास फ्लो रेट, ये तो बात, ये तो वही रखेंगे ना, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी तो वही रखेंगे, हम कब मना कर रहे हैं वो नहीं रखेंगे, 54.43 रखेंगे इसे आप। लेकिन ये मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट है, ये वाला मास फ्लो रेट नहीं आएगा इसमें, ये रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट है, यानी रेफ्रिजरेशन प्लांट से, अमोनिया आइस प्लांट से आप आइस बना रहे हैं, ये तो आइस का था कि वाटर जो सर्कुलेट कर रहा है, ये तो वाटर जो सर्कुलेट कर रहा था ना आइस बनने के लिए, ये उसका सर्कुलेशन था। अब ये दूसरा सर्कुलेशन आइस उसका है, रेफ्रिजरेशन प्लांट का भी सर्कुलेशन है, रेफ्रिजरेशन प्लांट के अंदर आपका यानी अमोनिया जो सर्कुलेट कर रहा है, अमोनिया जो सर्कुलेट, हाँ अमोनिया का हमें चाहिए, उसके लिए तो हमें ये H1 H4 चाहिए होगा ना, और क्या तरीका है बताइए। यस सर, आई गॉट इट सर। हाँ चलिए, तो अब ये एम डॉट निकाले, H1 H4 चाहिए हमें, तो H1 क्या होगा, H1 विल बी इक्वल टू Hg, है ना, Hg होगा नहीं होगा -15 पर, और H4 कैसे निकालेंगे, H4 H3 के बराबर होगा। H1 H4 निकालना सबसे आसान होता है, H2 थोड़ा सा मुश्किल होता है। H1 इक्वल टू Hg, है ना, H1 इक्वल टू Hg एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाता है 43.9 अमोनिया टेबल में। हम शेयर कर देते हैं मेरे ख्याल से, ताकि आप खुद से टेबल देख लें, प्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, एक बार टेबल आपको दिखाई देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। टेबल आप लोगों के पास है कहीं? वो सर जिसमें पीएच चार्ट वगैरह दिया उसी में होगा ना ये अमोनिया का? हाँ टेबल तो विजिबल नहीं हुई हुई आप लोगों को, एक ही टैब, हमारा रोक के फिर दोबारा टेबल पे जाना पड़ेगा, ये दिक्कत है इसमें। लेकिन दिखा देते हैं, अब आपको टेबल विजिबल हो गई है, तो बेटा टेबल विजिबल हो गई है? यस सर विजिबल। ये अमोनिया की टेबल है, ये ऐसे टेबल मैंने आपको शेयर की हुई थी पहले, अब दोबारा कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ये टेबल्स वगैरह भूल गया मैं शेयर करना, भी शेयर कर दूंगा मैं। तो बहरहाल ये टेबल है -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखेंगे, तो इस टेबल में -16 दिया हुआ है, खैर एक और भी टेबल में वो 15 में दिया हुआ, खैर इन दोनों का एवरेज ले लेंगे 14 16 का। तो अब ये है ना, देखो CP भी इसमें दिया हुआ है,
तो ये एंथैल्पी है हमारा। तो हमें जी का चाहिए ना, ये 1443 और 1445, -14 पर 1445 है और -16 पर 1443 है। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो आपका -16 पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 16 नहीं दिया हुआ, 14 दो के से दिया हुआ है इसमें डिफरेंस से। तो अभी देखिए बताते हैं आपको, 1445.66 16 पर हुआ और प्लस 1443.06 ये हुआ आपका। तो ये आ गया 1444.3 1444.3 और हमारा वो ये 14,044 लिखा हुआ। खैर टेबल का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, एक आध मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। अभी हमारा इस टेबल से आ रहा है 1444.3। तो जो भी किसी भी आप एक टेबल को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंस इसमें होता है, एक टेबल को आप फॉलो करेंगे तो वो डिफरेंस वही आएगा, ठीक है ना, सेम ही आएगा। हमारे इसमें आ रहा है 1444.36 1444.36, ठीक है। क्लियर है बेटा, इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया। Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही जो है अब हमें दूसरा चाहिए H4। H4 इक्वल्स टू H3 के, H3 है और H3 विल बी HF एट कंडेंसर टेम्परेचर। कंडेंसर टेम्परेचर कितना है? कंडेंसर टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें 5 वाली यूनिट आ रही है ना, ये सब इन्होंने 2 के डिफरेंस पर दिया हुआ है, तो वो 35 के लिए भी एवरेज करना पड़ेगा। 35 पर यानी HF हो जाएगा ये। तो ये आपका है 360, ये है आपका, हाँ ये है एंथैल्पी 35 पर। तो ये इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 361 और 370, 361.19 और 370, तो ये करीब 365 के आसपास आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, टेबल देखना ये यहाँ पर क्लियर है। इसमें तो मेन चीज है H2 को देखना, ये तो H1 H3 H4 तो इजीली निकल जाते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको अब ये रहा, अब इसे यहाँ से हम ये तो कर रहा है, यहाँ से फौरन चेंज करने का नहीं, स्टॉप प्रेजेंट करने के बाद ही चेंज होता है। स्टॉप करें फिर दूसरी विंडो करें, ये इससे बड़ा चक्कर है, वहीं लेके आए। चलिए, तो आपका ये इसी तरह से आपने H1 के, अब आपको विजिबल हो गई मेरी ये वाली विंडो प्रॉब्लम वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. H1 HG के बराबर आपको दिखाया मैंने, टेबल से ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत हमने 144 आ रहा था या 43.9 आ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 0.6 से 0.7 का डिफरेंस है। ऐसे ही आपका H4 366.1 मैंने कहा 365 आ रहा था वहां पर, ठीक है। तो H1 H4 को यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो यू विल गेट m डॉट, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, आया 0.0505 kg/सेकंड। तो ये पहला वाला, यानी आपका कैपेसिटी भी कैलकुलेट हो गई आपकी और मास वेट भी, दोनों चीज आपकी कैलकुलेट हो गई है। किसी ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, वो टेबल भेजी होगी मेरे ख्याल से, जिसमें कि होगा, क्लियर होगा। Yes, sir, it is stable. हाँ, इसमें दो के डिफरेंस दिया हो तो कहीं 5 के डिफरेंस होता है किसी टेबल में, तो थोड़ा आसान रहता है, डायरेक्ट देख सकते हैं। तो है मेरे पास भी है टेबल बहुत सी, और दूसरी टेबल्स हो सकता है हो, सीपी अरोड़ा है, सीपी अरोड़ा में हो सकता है सही हो, मेरा सीपी अरोड़ा से भी देख सकते हैं आप, सीपी अरोड़ा की बुक में पीछे टेबल दी होगी। चलिए, अब ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट है डिस्चार्ज टेम्परेचर। थर्ड पार्ट इज टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज टेम्परेचर, ठीक है। अब डिस्चार्ज टेम्परेचर निकालने के लिए मैंने आपको बताया 3 मेथड है, ठीक है। एक मेथड तो आइसेंट्रोपिक का, यानी एंट्रोपी आप देख लें, एंट्रोपी की हेल्प से S2 पर, इस पॉइंट पर आप एंट्रोपी कैलकुलेट कर लें। कैसे एंट्रोपी कैलकुलेट करें? S1 की हेल्प से, S1 इक्वल्स टू S2। S1 आपके डायरेक्ट टेबल से देख लेंगे, Sg के बराबर, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, S1 Sg के बराबर डायरेक्ट टेबल से आपका आया, तो आपकी क्या मिल गया? आपको एंट्रोपी मिला, ठीक है। एंट्रोपी आपको मिला, अब यहाँ की एंट्रोपी यानी आपको मालूम हो गई है। अब ये एक मेथड तो ये है कि आप पीएच चार्ट वाला पहले बताएं क्या, या फिर चलिए कोई सब देख लें आप, इसमें पीएच चार्ट वाला भी पहले बता देते हैं। चलिए, पीएच चार्ट वाला, तो ये एंट्रोपी की लाइंस होती है, ये टेम्परेचर की लाइंस होती हैं यहाँ पर। ये तो मैंने दिखाया था ना आपको पिछली बार, पीएच चार्ट, ये टेम्परेचर की लाइंस होती हैं, एंट्रोपी लाइंस होती हैं, ठीक है। अमोनिया की टेबल पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है मेरे पास,
अमोनिया आर है तो पीएच चार्ट अमोनिया का देखना पड़ेगा। तो पीएच चार्ट से पहले बताते हैं आपको, पीएच चार्ट से कैसे देखेंगे। आपको एंट्रोपी मालूम होगी आपकी 5.8223 है। तो अब आप पीएच चार्ट में आपको देखना पड़ेगा 35। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को लोकेट करना होगा। हमें पीएच चार्ट से अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, टू लोकेट दिस पॉइंट। हाउ टू लोकेट दिस पॉइंट, तो उसमें वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। पीएच चार्ट की हेल्प से अगर आपको टेम्परेचर निकालना है, H2 निकालना है, उसमें आपको वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं है कि H2 की वैल्यू क्या है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं देखने की। उसमें क्या करना है आपको, यहां से एंट्रोपी की लाइन पर चलना है बस। वन पर ये एंट्रोपी की लाइन यहाँ से जा रही है ना, स्लैंट लाइन इस तरह से जा रही है, एंट्रोपी की लाइन जा रही होंगी, आप देखेंगे। तो यहाँ से एंट्रोपी की लाइन के पैरेलल चलना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है 35 की लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है और एंट्रोपी की लाइन पर यहाँ पर चलना है। तो जहां पर भी मीट कर जाएगी एंट्रोपी की लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 35 की, वो पॉइंट आपका लोकेट हो जाएगा। तो फिर ये जो टेम्परेचर की लाइंस डॉटेड लाइन यहाँ आ रही है, तो उस लाइन की हेल्प से आपको देखना है कि टेम्परेचर क्या है। तो डायरेक्टली आप चार्ट से देख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड है ये। तो ये ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है, इसमें है क्या, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ ये है मेरे पास। वैल्यू से बहुत डिफरेंट आ जाती है सर, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस, 1-2 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इस चार्ट से दिखाता हूँ। ये चार्ट है हमारे पास, इसको हम वो कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। हो गया। तो ये आपको विजिबल नहीं होगा ना चार्ट अभी? No, sir. मुसीबत है ना इसमें कि हमें फिर दोबारा से इसे स्टॉप करके वहाँ जाना पड़ेगा। कोई ऐसा मेथड नहीं कि डायरेक्ट विंडो चेंज हो जाए, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसे मेथड, कोई होगा तो जरूर से डायरेक्ट विंडो चेंज हो जाए। दूसरी विंडो को हमें वो शेयर करना होगा। ये विंडो है हमारी। चलिए अब आपको विजिबल हो गया होगा चार्ट, विजिबल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it's visible. ये चार्ट मेथड से आप कैसे देखेंगे, तो हमारे पास दो टेम्परेचर है, -35 -10 है और 35 है। तो हमें दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी, -10 और 35। ये अमोनिया है ना, हाँ। ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है 100, 80, 40। तो -10 ही है टेम्परेचर, -10 है या -15 है? अरे वाटर है, गलती से वाटर का खुला हुआ है। मैं सोच रहा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है इसमें। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये है आपका मीथेन। अच्छा ऊपर था, अमोनिया का ऊपर होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है यार, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है -10। ये शायद अमोनिया, हाँ ये अमोनिया, ठीक है। तो वह -10 आ ही नहीं रहा था ना, मैंने -10 कहाँ चला गया। तो ये -20 है, 0 है, इसमें इन दोनों के बीच में होगा 0-20 का हाफ 10 होता है। तो इन दोनों के बीच में आपका 10 होगा, -10 होगा। ये टेम्परेचर -10 है ना। इन्होंने -10 को लोकेट भी नहीं किया हुआ, खैर हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये इसको अगर आपको करना है, सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। देखो पीएच चार्ट के लिए आप 2-4 प्रिंट आउट ले लीजिए, है ना। जैसे अब अमोनिया का ज्यादातर क्वेश्चन आता है, R11, R12, R22, R134, 4-5 ग्राफ का आप प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट के बगैर इसमें हो नहीं पाएगा। और फिर क्योंकि इन दोनों को एग्जैक्ट दिया नहीं होता, तो 0 और 20 के बीच में एक यहाँ लाइन होगी, ये वाली लाइन है, तो ये लोकेट हो जाएगा आपका, ये .1, ये .1 जो है ये लोकेट हो जाएगा। समझे ना, ये 0 की लाइन है ये वाली, और ये -20 की लाइन है, -10 की लाइन दोनों के बीच में होगी, ये लाइन तकरीबन होगी। तो ये आपका लोकेट हो जाएगा .1। इसमें सारे पॉइंट आपको लोकेट करने होंगे, सारे पॉइंट आप लोकेट कर दें, डायरेक्ट वैल्यू देख लेंगे। पीएच चार्ट में कुछ भी
नहीं करना होता, बस आपको सारे पॉइंट लोकेट करने होते हैं। सारे पॉइंट लोकेट करते प्रॉब्लम समझो आपकी सॉल्व हो गई। आपने एक बार पीएच चार्ट सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएच चार्ट्स की वैल्यू को लिखिए, कोई और एग्जामिनर कभी भी काट नहीं सकता आपकी वैल्यू को, क्योंकि पीएच चार्ट और एशरे की टेबल है, ये कोई ऐसे नहीं है, एशरे की टेबल है ये, है ना। आप चाहे तो इस चार्ट को अपने, जैसे कि मान लो कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो इस चार्ट को आप साथ में लगा भी सकते हैं, है ना। इस पर लोकेट करके आप पेंसिल से लोकेट करें, सबसे तरीका अच्छा ये होता है कि पेंसिल से आप लोकेट करें पॉइंट को। ये हमारा पॉइंट आ रहा है -10 का पॉइंट, -10 है और 35 है, -10 ये तो एक बार मैं देख लूँगा, -15 है, सॉरी ये तो और गड़बड़ है, -15 को लोकेट करना और मुश्किल होगा। 0 और ये -10 था, तो 10 और 20 के बीच में, यानी यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा। अच्छा, इसमें वो भी काम नहीं कर रहा हमारा टूल, भी वो भी काम नहीं कर रहा, फैन भी काम नहीं कर रहा इसमें। अगर हम इसे क्या कुछ कह रहे हैं, कोई फोटो किसी ने भेजा है, देखते हैं अगर फोटो सही है तो। पीएच चार्ट, कोई अच्छा पीएच चार्ट आपको मिले कहीं जिसमें कि ज़्यादा क्लियर इमेजेस हो। क्लियर इमेज तो खैर इसकी भी है, लेकिन कि वैल्यूज़ ज़्यादा दी हों, जैसे इसमें बहुत वैल्यूज़ नहीं दी। तो अभी हमारा ये तो वही भेजा है आपने, ये तो वही है जो मैं देख रहा हूँ बेटा, ये तो वही है जो आपने भेजा है, वही है जो मैं देख रहा हूँ। हर्षित ने कुछ और भेजा है। चलिए तो इसी को पहले देखते हैं, एक मिनट। इसको एक तरीका ये है कि इसको तो बहरहाल समझ लीजिए आप इसे प्रिंट आउट लेकर के करिएगा। ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 15 से आइसेंटोपिक लाइन पर आपको चलना है। आइसेंटोपिक लाइन कौन सी है, ये वाली देखिए, ये वाली लाइन जो है ना, ये आइसेंटोपिक लाइन है आपकी, स्लैंट लाइन जो दिख रही है आपकी, इस लाइन पे आपको चलना होगा। तो ये -15 आपका ये करीब है, यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल चलना होगा आपको। एग्जैक्ट लाइन को मिलेगी नहीं आपको, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट लाइन आपको, जैसे ये आपका पॉइंट है तो आपको ऐसे आपको इसके पैरेलल चलना होगा, और जहां 35 कट करें, 35 यहाँ पर, जहां 35 कट है, ये पेंसिल एक बार इसे करके देखेगा आप, एक बार इसका कोई भी एक जैसे अमोनिया का ही है, ये काफी इसमें क्लियरिटी है चार्ट में तो, लेकिन नहीं है कि इसमें -10 और इन्होंने गैप बढ़ा दिया हुआ है, 0 के बाद सीधा -20 -40। तो बहरहाल ये आपको खुद से थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। सर सीपी अरोड़ा में -10 भी दे रखा है। सीपी अरोड़ा में है, चलिए एक मिनट में देख, सीपी अरोड़ा खोल लेते हैं, कोई बात नहीं, सीपी अरोड़ा मेरे पास भी खुली हुई है, तो सीपी अरोड़ा में है तो में भी दे रखा है सर -10। डायरेक्ट मैं उसी पेज नंबर पहुंच जाऊंगा। चलिए मैं एक मिनट, -10 नहीं है, लेकिन -15 है, मैंने अभी देखा है। सर आरएस में -15 भी है। चलिए खैर कहीं भी मिल जाए आपको, तो बहरहाल उस चार्ट को आप प्रिंट ले लें। सबसे अच्छा तरीका ये प्रिंट लेने का, प्रिंट लेकर के आप सही से उसे पेंसिल से और उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके तभी आप कर पाएंगे। पीएच चार्ट का तो और कोई तरीका नहीं है सिवाय पेंसिल से। सर तो कॉमन कौन सा है, अमोनिया है और कौन सा है कॉमन? अमोनिया का ज्यादातर होता है, प्रॉब्लम जो होती है R22 होता है ज्यादा जो यूज होता है, अभी जो यूज हो रहा है R134A है, ये 2-3 है ना, इसका आप ले लीजिए। R11 R12 भी है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अमोनिया, R11, चलिए 4 मान लीजिए फिर आप, R11 R12 R22 अमोनिया और R134A, 5 मान लीजिए, 5 जो है ज़्यादा कॉमन है। वैसे R11 R12 तो भी फेज आउट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम में अभी भी बुक में तो दिए हुए हैं, तो अगर प्रॉब्लम हो सकता है हो उनकी R12 की भी प्रॉब्लम हो। मैंने अमोनिया की दी हुई प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम R22 की है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ R22 है।
हाँ तो ठीक है, R22 अमोनिया का तो अभी आप ले लीजिए। तो इसे आप समझ लीजिए, बस मैं समझा देता हूँ, फिर ऐसा करते हैं आप अब इसे प्रॉब्लम खुद से करके देखिएगा बेटा, है ना। मैं शेयर कर देता हूँ अपनी वही स्क्रीन दोबारा, प्रॉब्लम वाली ही कर देता हूँ। एंटायर स्क्रीन पहले हो जाया करती थी तो उससे फायदा रहता था, आप जहाँ भी जा रहे हैं फौरन वो साथ साथ वही स्क्रीन आ जाती थी आपकी। एंटायर स्क्रीन में डल हो जाता है। ठीक है, अब ये स्क्रीन आ गई ना हमारी प्रॉब्लम वाली। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ मैं, हमें करना क्या है, ये पीएच चार्ट, ऐसा पीएच चार्ट होता है आपका, वहाँ देख लिया आपने पीएच चार्ट कैसा होता है। अब आप ये -15 वाली लाइन आपको ये ड्रॉ करनी है, ये लाइन -15 वाली लाइन ड्रॉ करनी है ये। और ये लाइन जहां पर ये सैचुरेशन लाइन को कट करेगी वो आपका 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसी लाइन, ये स्लैंट लाइन आपकी डॉटेड या डैश या किसी भी तरह की लाइन होगी, या कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन होगी। इस लाइन, ठीक है, मान लो ये लाइन एग्जैक्ट तो आपको मिलेगी नहीं कि बिल्कुल आपकी जो ड्रॉ है उसी से मैच कर ले। तो ये जो लाइन होगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल एंट्रोपी वाली लाइन ये है, तो इसके पैरेलल आप चलिए, पैरेलल चलिए, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसकी, ऐसे ये वाली लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप ऐसे। और एक लाइन भी 35 की लीजिए आप, 35 की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, 35 की। तो जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस स्लैंट लाइन को कट करेगी तो वो आपका 2 पॉइंट हो जाएगा। तो 1 पॉइंट लोकेट हो गया, 2 पॉइंट लोकेट होगा। और जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस सैचुरेशन को, लिक्विड को कट करेगी वो 3 हो जाएगा। और 3 और 4 तो बराबर होते हैं, 4 को लोकेट भी करने की जरूरत नहीं है, 3 हो जाएगा बस। ऐसे 1 2 3 लोकेट कर लीजिए, अब काफी है। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे लोकेट कर लेंगे 1 2 3? करके देखिए आप Yes, एक sir. बार, पीएच चार्ट ड्रॉ करके आप पीएच चार्ट आप फोटो प्रिंट आउट निकाल करके उसमें आप लोकेट करके देखिएगा। पीएच चार्ट से प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है, मैं आपको बताऊं, है ना। एक बार आपने लोकेट कर लिया, आप सीधा नीचे जाएंगे, आपको ये एच मिल जाएगा, नीचे आप जाएंगे एच मिल जाएगा। 2 आपने लोकेट करा, 2 में से नीचे जाएंगे, 2 में नीचे जाएंगे आपको दूसरा H2 मिल जाएगा, यहाँ पर H2 मिल जाएगा, इससे नीचे आप आएंगे तो इसमें आप नीचे आएंगे ये आपका H3 मिल जाएगा। तो इस पे ये डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। और टेम्परेचर देखने के लिए, टेम्परेचर कैसे देखेंगे, टेम्परेचर की ऐसे ये लाइन मैंने आपको बताया था, ऊपर से तो ऐसे वर्टिकल आती है लाइन ये, और इस साइड में राइट में ये ऐसे यानी इंक्लाइन लाइन इस तरह से नीचे जाती हुई डाउनवर्ड लाइन होती है इस तरह से। तो ये 2 पॉइंट का आपको टेम्परेचर देखना है, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट टेम्परेचर आप लाइन आपको मिले हो, तो जरूरी नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा जो आपकी लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आपकी जा रही है 135 की, और ये लाइन फॉर एग्जाम्पल जा रही है 85 की। तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में आपका कितना, यानी 85 के बाद और 135 से पहले कितना है बीच में। या 80 की लाइन फॉर एग्जांपल जा रही है, आपकी लाइन यहाँ पर, आपका पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कितना आगे है ये। तो इस तरह से आप देखेंगे तो करीब जो आपका टेम्परेचर जो हमारा आ रहा है 112.1 आ रहा है, 112 आ रहा है। 110 भी अगर आपका आ जाए ना प्रॉब्लम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेट यानी पीएच चार्ट से 110 भी आ रहा है, हमारा 112 आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस इसमें नहीं माना जाता। आमतौर से वैसे आ जाएगा 112 के आसपास भी आ जाए, 11, 12, 13 ऐसे आ जाएगा। एक तो मेथड हुआ ये। दूसरा मेथड हुआ फिर पीएच चार्ट, दूसरा मेथड हुआ आपका एंट्रोपी के मेथड से, यानी सुपरहीट टेबल से। सुपरहीट टेबल से तो आपने एंट्रोपी आपने देखा, ठीक है, एंट्रोपी आपने यानी S1 = S2 हुआ, S1 आपका Sg के बराबर हुआ, S2 एंट्रोपी आप कैलकुलेट हो गई। फिर आप S2 डैश की एंट्रोपी आप टेबल से देख लीजिए, S2 डैश यानी वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जो कि सैचुरेशन पर है 35 के करस्पॉन्डिंग, Sg 35 पर, ये देख लीजिए। फिर आप ये देखिए आपका जो एंट्रोपी है वो इससे ज्यादा है कि कम है, इसी बात से ज्यादा ही होगी, तो इसका सुपरहीट है। तो इससे ज्यादा, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट आप देखिए कितना है, नेक्स्ट वाला पॉइंट की एंट्रोपी कितनी है, इससे अगले वाले की एंट्रोपी कितनी है। ठीक है, जैसे आपका पॉइंट 2 है, इस पे एंट्रोपी 5.8223 आ गई आपकी, और आपकी एंट्रोपी उससे पहले सैचुरेशन की देख लीजिए, या उससे पहले जो भी दिया हुआ है बुक में उससे देख लीजिए, सीपी अरोड़ा में दिया हुआ है ये, उससे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि ये एंट्रोपी किस टेम्परेचर पर है आपकी, इन्होंने 10-10 के गैप से दिया हुआ है। मैं आपको टेबल शेयर करूँ, सीपी अरोड़ा में है, एक मिनट देखता हूँ मैं, सीपी मैंने देखा था सुपरहीट टेबल, अमोनिया की सुपरहीट टेबल। सुपरहीट टेबल से भी हम देख सकते हैं। सुपरहीट टेबल में क्या होगा कि एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिल जाएंगी, उसमें ये नहीं है कि थोड़ा सा गैप आ रहा है, कुछ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, एग्जैक्ट आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। ये आपका है 600A है, 125 है, 123 है, 134 है, 125 है,
और ये 600 ए है, आइसोब्यूटेन 152 ए। टेबल तो बहुत सारी हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं वही नहीं होती। हाँ, ये मिल गई अमोनिया की। चलिए, तो मैं अमोनिया टेबल आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टाइम तो हो गया है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो कम से कम हो जाए। चलिए, ये टेबल आपको हो गई है बेटा, विजिबल हो गई ये टेबल? यस सर। Yes, sir. तो हमारा अभी क्या था, 4 पॉइंट जो हमने यहाँ 5.823 कितना था, 5.8223, ठीक है। 5.8223 एस है हमारी, S2 है हमारा। कैसा है S2? S1 के बराबर। S1 कहाँ से आया? SG के बराबर -15 पर। तो बेसिकली आपका है 5.8223, ठीक है। 5.8223 को आप देखिए। अब आपको -35 के करस्पॉन्डिंग देखना है, सॉरी 35 के करस्पॉन्डिंग देखना है। 35 आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है, 35। तो ये आपका 35 हुआ सैचुरेशन टेम्परेचर, ये रहा आपका 35, ठीक है बेटा। तो इसका आपका क्या है, 5.8223। तो ये इन दोनों के बीच में है, ये 5.648 है और 5.982, यानी इन दोनों के बीच में आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपकी एंट्रोपी 5.648 है, क्योंकि 50 डिग्री सुपरहीट पर है। 50 डिग्री सुपरहीट का मतलब क्या हुआ, ये टेम्परेचर 13.5 है इसका, सॉरी 35 है टेम्परेचर इसका, 35 + 50, यानी ये टेम्परेचर कितना होगा, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सुपरहीट का मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेचर 5.648 का हुआ 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सुपरहीट है, इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या हुआ आपका 135। ये तो 135 पर है वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी किस पर है, 85 पर है डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी वैल्यू है इन दोनों के बीच में, आपकी वैल्यू है 5.8223। उसके लिए आपको टेम्परेचर नहीं, आप बस सिंपल एक इंटरपोलेशन आपको निकालना है, T2। नाउ यू हैव टू डू सिंपल इंटरपोलेशन। अब आपको कुछ और नहीं करना है, आपने वैल्यू देख लिया, इन दोनों के बीच में आपकी वैल्यू है 5.982 और 5.648 के बीच में 5.8223। ये टेम्परेचर 85 है, ये टेम्परेचर 135 है, इन दोनों के बीच आपके टेम्परेचर। आप सिंपल है कि लाइन की इक्वेशन आप लगा दीजिए। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m × x - y1। m क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x - x1। ये होती लाइन की इक्वेशन। यस सर। x वो होता है जो आपके पास मौजूद होता है, y होता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, क्योंकि तो इसलिए y आपका टेम्परेचर होगा, तो y आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज टेम्परेचर, है ना। y को y लिख लीजिए, छोड़िए टेम्परेचर, मत कंफ्यूज ना हो। तो टेम्परेचर आपको y1 यानी पहला वाला टेम्परेचर क्या है, 85, y - 85 = y2 - y1 यानी 135 - 85, 135 - 85, ये हुआ y2 - y1, ठीक है। डिवाइड बाय x2 - x1 क्या, 982 - 5.648, ये हुआ आपका x जो मौजूद आपके पास अवेलेबल है, और x क्या है, आपकी वैल्यू 5.8223, और x1 क्या है, पहली वाली वैल्यू 5.648। दिस विल गिव यू y, दैट इज T2, टेम्परेचर T2, और ये आ रहा है आपका 112.1। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 112.1 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये तरीका सुपरहीट टेबल से। सुपरहीट, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट टेम्परेचर बाय यूजिंग सुपरहीट टेबल। समझ में आ गया तरीका, बताइए, ये मेथड आपको क्लियर हुआ Yes, Yes, sir. 135 कैसे है सर? जी? यस सर, यस सर। अच्छा, ऐसे ही आप H2 भी निकाल सकते हैं। आपको क्योंकि जरूरत पड़ेगी H2 की, क्योंकि वर्क डन निकालना होगा H2 - H1। तो जैसे आपने ये निकाला वैसे H2 भी निकाल सकें। H2 निकालने के लिए आपको क्या होगा, H1 आपको मालूम है यहाँ पर, यानी H1 आपका क्या है, H1 आपका क्या था, नहीं H1 की जरूरत नहीं है, उसको आपको निकालना है H2। तो H2 के लिए तो टेम्परेचर की हेल्प से निकाल लीजिए आप। टेम्परेचर को क्या आपको मालूम हो गया, तो टेम्परेचर यानी इन दोनों के बीच में होगा H2 भी आपका, ठीक है ना। आपको 85 पर H पता है, H से 1635, ये वैल्यू कितनी पर है, 85 पर आपको मालूम है।
और आपको 135 पर एच पता है, 135 पर एच कितना है 762, ये मालूम है आपको। आपको निकालना कितने पर है 112.1 पर है, वो आपको निकालना है, ठीक है। आप ये निकल जाएगा ऐसे एक्सट्रैपोलेशन इंटरपोलेशन करके। भाई आपको एच मालूम है किस पर 85 पर एच आपको मालूम है, और आपको 135 पर एच मालूम है, ठीक है। आपके पास एच जो है 85 पर आपके पास है एच 1634, ठीक है, और आपके पास एच 135 पर है 1762। तो आपको एच निकालना है किस पर 112.1 जो टेम्परेचर आपका आ गया। निकाल लेंगे ये इंटरपोलेशन से, तो बेटा जैसे ये किया वैसे बिल्कुल ये हो जाएगा। वाई आपका एच है, वाई की जगह एच आ जाएगा आपका, एक्स की जगह टेम्परेचर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों भाई? यस सर। अच्छा, बिना टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उसने नहीं पूछा, बिना टेम्परेचर निकाले भी आप एच निकाल सकते हैं। फिर आप टेम्परेचर के बजाय यहाँ पे एंट्रोपी यूज करेंगे। अगर आपको उसने टेम्परेचर नहीं पूछा किसी प्रॉब्लम में, उसने कहा भाई हमें डिस्चार्ज टेम्परेचर नहीं पूछा, उसने सिंपल आपको वर्क डन निकालना है, डिस्चार्ज टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं मालूम करना है, तो आपको ये 112 आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप एच आपका 85 के बजाय आप क्या यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू 5.648, यानी एच एट 5.648 1635 है, एच एट 5.982 1762 है, एच एट 5.8223 कैलकुलेट करना है। फिर आपका एंट्रोपी का यूज करेंगे एज ए मोल वैल्यू। इस तरह से एच कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस सुपरहीट टेबल H2। और आपका H2 अगर आपका आ गया है तो फिर H2 के साथ आप वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होगा, H2 माइनस H1। वर्क डन पूछा है ना उसने, वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा H2 माइनस H1, ठीक है। और आपका COP क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। ये थियोरेटिकल COP होगा, दिस विल गिव यू थियोरेटिकल COP, है ना। और एक्चुअल COP निकालना है तो जो आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपने कैलकुलेट करा था उसको वर्क डन से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल गिव यू एक्चुअल COP। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्चुअल। थियोरेटिकल तो होगा सर, एक्चुअल सीओपी में सर जो हम रेफ्रिजरेशन वाला जो जहाँ से हमने शुरू में निकाला था रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ये जो H2 माइनस H1 यानी कंप्रेसर वर्क को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो आपको दे देगा एक्चुअल COP, ठीक है। और थियोरेटिकल COP हो जाएगा H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये थियोरेटिकल COP हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पावर कंजप्शन में असल में अभी आपको पावर कंजप्शन जो आप निकालेंगे ना, पावर कंजप्शन में क्योंकि लॉसेस भी हैं, वो लॉसेस भी कंसीडर करने पड़ेंगे इसमें। अभी आप आगे करिएगा, इस प्रॉब्लम करके देखिएगा चलिए, क्योंकि लॉसेस जो है ना इसमें दिया हुआ, कंप्रेसर में भी एफिशिएंसी, कंप्रेसर एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आपको एक्चुअल पावर निकालने के लिए कंप्रेसर एफिशिएंसी से और आपका पावर एफिशिएंसी से उससे डिवाइड करना पड़ेगा H2 माइनस H1 को। यानी पावर कंजप्शन क्या होगा आपका m डॉट इंटू H2 माइनस H1 डिवाइड बाई कंप्रेसर एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल, यानी मोटर एफिशिएंसी इंटू कंप्रेसर एफिशिएंसी, इसे डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू पावर कंजप्शन, एक्चुअल पावर कंजप्शन। वो एक्चुअल पावर कंजप्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, आप एक्चुअल COP आएगा, ठीक है। तो आप करके देखिए, इस प्रॉब्लम कंप्लीट करिएगा, इस प्रॉब्लम को अपने से ही है, वैसे तो मैंने ये आपको प्रोवाइड कर रखी है, ये आप इसमें से सिर्फ प्रॉब्लम देखिएगा, बल्कि इससे सॉल्यूशन मत, बिना सॉल्यूशन देखे आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, में कई चीजें निकालनी है आपको, ठीक है बेटा, कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो आपने अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से, एक प्रॉब्लम नेक्स्ट टर्न पे और कराएंगे, उसके बाद फिर आगे का पढ़ाएंगे। आपको प्रॉब्लम शीट दे देंगे, आप ट्राई करते रहना उसे, एक प्रॉब्लम हम और कराएंगे। अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग अपनी चैट बॉक्स में। आप खुद से ट्राई करेंगे ना, तब आपको समझ में ज्यादा क्लियर आएगा। बहुत सी चीजें TH चार्ट से भी करके देखिएगा T2 को, और एंट्रोपी के इससे भी करके देखिएगा, और तीसरा जो मेथड रह गया उस तीसरे मेथड को भी ट्राई करिएगा एक बार। तीसरा मेथड भी एक बचा हुआ है, हमने बताया हुआ था, तीसरे मेथड से भी करके देखिएगा एक बार। सबने दे दिया अटेंडेंस? अटेंडेंस देते रहिए, और जो कुछ पूछना है तो रुक सकता है, बाकी लोग लेफ्ट कर जाए।